Vande Mataram, dear students. In this video, we will see extended version of Module 3 of functions, which deals about algebra of real functions and graph of various functions. So first we will see algebra of real functions. See how. Algebra of real functions tells you about how two real functions can be added, subtracted, multiplied, or be divided. Let us have two real functions f and g, f from x to r and g also from x to r, where x is any subset of r. f भी एक फंक्शन है x से r में, g भी एक फंक्शन है x से r में, और x क्या है? x रियल नंबर्स का कोई सबसेट है. So by definition of real functions, this f and g would be real functions, as we have already seen about real functions. Now let x be any element of capital X. इस सेट x में एक एलिमेंट स्मॉल x अज्यूम करेंगे. Then f plus g of x will be what? X plus g of x will be fx plus gx for all x belonging to x. मतलब अगर f plus g को एक को ऐड करके हम x पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो fx plus gx के इक्वल ही आएगा. Similarly, if we do the second operation, that is f minus g of x. So f minus g of x will give you what? fx minus gx for all x belonging to x. Third operation, which is multiplication. So f multiplied by g of x will give you fx multiplied by gx for all x belonging to x. And the fourth operation, f by g of x, that is quotient of two functions, will give you fx by gx for all x belonging to x, provided that gx should not be equal to 0. Because if this denominator becomes 0, then this function will be not defined. Therefore, here the condition lies that this denominator, that is gx, should not be equal to 0. Now, what about scalar multiplication? So, if we have alpha times f of x will be equal to alpha times fx, again for all x belonging to x. This was your operation of real functions, which we call as algebra of real functions. We'll elaborate it with some example. Let us take one example so that it can be clear to you. अच्छा, एग्जाम्पल लेने से पहले एक बात और ध्यान दीजिए. ये f plus g कहाँ से कहाँ जाएगा? Obviously, f is from x to r, g is from x to r. Therefore, this f plus g will be from x to r. This f minus g will also be from x to r, because f is from x to r and g is from x to r. तो ये जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म किए,
ये भी कहाँ से कहाँ जाएंगे, x to r में ही जाएंगे. Now let us take one example. See this example. Here f is a function from real numbers to real number and g is also a function from real numbers to real number. Given by fx is equal to x plus 1. This is definition of f, and gx is equal to 2x minus 3. This is definition of g. Then if we have to find out f plus g, so where it will be from, f plus g कहाँ से कहाँ होगा, r से r में ही होगा, क्योंकि f और g दोनों ही फंक्शन r से r में जा रहे हैं. So f plus g of x will be what? As I told you, fx plus gx. That means fx क्या है आपका, x plus 1 है, gx क्या है, 2x minus 3 है. So what will it give? 3x minus 2. So f plus g of x will be fx plus gx. So first we will apply the definition of fx on x, that is x plus 1. Then we will take the definition of gx, that is 2x minus 3, and we will add both. So after adding, what we are getting? 2x plus x, that is 3x, and 1 minus 3, that will give you minus 2. Similarly, we'll perform f minus g of x. So f minus g of x will give you what? fx minus gx, that is x plus 1, fx is x plus 1, minus gx is 2x minus 3. So then what you will get? X plus 1, due to this minus it will become minus, and this will become plus. So what you will get? Minus x plus 4. Right? Let us see now about product and division. So if we do the product, f multiplied by g of x, what it will give? fx multiplied by gx, that means x plus 1 multiplied by 2x minus 3. Multiply this, what you'll get? 2x square minus 3x plus 2x minus 3. That would give you 2x square minus x minus 3. So this is product of two functions. And what about their quotient? F upon g of x will give you fx upon gx. That means it would be x plus 1 upon 2x minus 3. But here what was the condition? That gx shouldn't be 0. Now here we will check for which value of x this gx would be 0. If we put x is equal to 3 by 2, suppose x is equal to 3 by 2 we are putting, then 2 will be cancelled and 3 minus 3 will be 0. That means x cannot take this value. x ये वैल्यू नहीं ले सकता, इसके अलावा सारी वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि इस एक पर्टिकुलर वैल्यू के अलावा हर एक वैल्यू के लिए ये जी एक्स नॉन ज़ीरो होगा और ये एफ वाई जी ऑफ एक्स डिफाइंड होगा. सो यही चेक करना होता है जब हमें क्वोशिएंट निकालना होता है कि x की वो पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली जा सकती जिसके लिए ये जी एक्स 0 आए. ठीक है.
Now let us see graph of various functions. Let us start with the simplest of the function, identity function. First I am taking identity function. What is this identity function? This is a real function f from R to R given as fx is equal to x for all x belonging to R. This is the definition of identity function fx is equal to x for all x belonging to R. Why it is called as identity function? Because whatever value we put of x, the same value we are getting of fx. That's why it is called as identity function. Let us have points on this function, because किसी भी चीज़ का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, चाहे वो कर्व हो, what do you require? You require points, and by joining those points you get the graph. Let us have points on this function. You already know fx is what? Value of y. So value of y कहाँ से आएगी? We assign arbitrary values to x and then we get corresponding values of y or fx. So let x is equal to 1, fx will be, or y will be what? 1. X is equal to 2, y will be what? 2, because same we are getting. Similarly x is equal to 3, y will be 3. Come on the negative side, x is equal to, negative से पहले 0 देख लेते हैं. X is equal to 0, y is equal to 0. X is equal to -1, y is equal to -1, because same value it is getting. X is equal to -2, y is equal to -2 and so on. ऐसे ही वैल्यूज मिलती चली जाएंगी. जो भी वैल्यू x की लेंगे सेम वैल्यू y की मिलेगी. देखिए ग्राफ कैसा आता है इसका. This is your x-axis, this is your y-axis, this is your origin. Let us make the points. Suppose 1, 2, 3 and so on. 1, 2, 3, -1, -2, -3. Here also -1, -2, -3. इतना ही लिया मैंने points. इन पॉइंट्स को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखें क्या मिलेगा? 1, 1. यहाँ से क्या पॉइंट मिलेगा? 2, 2. यहाँ से क्या पॉइंट मिलेगा? 3, 3. Here you will get 0, 0. Then you are getting -1, -1. Here you are getting ये वाला पॉइंट -2, -2. So you see, either you are getting both positive or you are getting both negative. यहाँ पे अगर हम x is equal to -3 लेते, then also y is equal to -3. So again you get the point -3, -3. तो both positive and both negative. तो पॉइंट से ही पता चल रहा है कि ग्राफ हमारा किन क्वाड्रेंट्स में जाना चाहिए. It should go in either first quadrant or in the third quadrant where both are positive and both are negative. तो ये ग्राफ कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में. कैसे? प्लॉट करते जाइए. 1, 1, देन 2, 2, देन 3, 3. ऐसे ही मिलता चला जाएगा. 4, 4, 5, 5. जितना आगे चलेंगे 0, 0 मिल ही रहा है. एंड देन -1, -1, -2, -2, -3, -3 एंड सो ऑन. इन पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें, so we will get a straight line passing through origin and making an angle of 45 degrees from positive x direction. Why an angle of 45 degrees? Because अगर आप किसी भी पॉइंट से दोनों एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपको हमेशा एक स्क्वायर मिलेगा. 3 यूनिट्स 3 यूनिट्स, 2 यूनिट्स 2 यूनिट्स, 1 यूनिट 1 यूनिट. और स्क्वायर का डायगोनल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 45 डिग्रीज का. तो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन
making an angle of 45 degrees from positive x direction. This is the graph of identity function. अब आपकी बुक में इसके बाद दूसरे फंक्शंस दिए हुए हैं, लेकिन यहीं पर हम आपको मॉड्यूलस फंक्शन पहले बताएंगे, so that you can relate something. Very important function, modulus function. This graph is very important, and this portion graph itself is very important for your competitive exams also. And one more thing, if you have a good command over graph, you will have a good command over functions, and then you will have a good command over calculus. And calculus is everywhere in your competitions and in higher mathematics. तो कैलकुलस पे कमांड करना है तो ग्राफ पे कमांड करना बहुत ज़रूरी है. वो चीज़ अभी आपको 12th में ही समझ में आएगी. ये सारे ग्राफ आपको लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं क्लास 12 में. लेट अस सी द सेकेंड. तो आइडेंटिटी फंक्शन का पहले देख लीजिए. आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा आया आपका, दिमाग में बैठा लीजिए. स्ट्रेट लाइन कवरिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट with 45 degree angle of with positive x direction. Now see modulus function. यहीं पर थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, पूरा चेंज करेंगे नहीं, ध्यान से देखिए. पॉइंट्स को थोड़ा इधर लिख देते हैं. चलिए ये भी कर लेती हूँ, देखिए कैसे होगा. मॉड्यूलस फंक्शन भी एक रियल फंक्शन है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. आइडेंटिटी फंक्शन में क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स. यहाँ पर क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स. तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स है, मतलब अगर हम इस पे पॉइंट्स लें, देखिए लेट एक्स इज इक्वल टू, सपोज आई एम टेकिंग नेगेटिव पॉइंट्स, -3. देन मॉड ऑफ एक्स विल बी व्हाट, यानी एफ एक्स यानी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, मॉड हो जाएगा. मॉड ऑफ -3 विल बी 3. एक्स की वैल्यू -2 ली तो वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मॉड ऑफ -2 दैट इज 2. एक्स की वैल्यू -1 ली तो वाई की वैल्यू अगेन मॉड ऑफ -1 विल बी 1. अगर हम 0 ले रहे हैं तो मॉड ऑफ 0 विल बी 0. If we are taking x is equal to 1, then y is equal to 1, because mod of 1 will be 1. पॉजिटिव का mod पॉजिटिव ही रहता है. x is equal to 2 तो y will be 2. x is equal to 3, then y will be 3. So what you are getting, if we put it in ordered pairs, so what kind of, here I am making some space for writing, what ordered pairs you will get, -3 3. Here you will get -2 2. Here you will get -1 1. Here you will get 0 0. Here you will get 1 1 2 2 3 and 3. Just concentrate here. You are getting points of the sign minus plus और प्लस प्लस. पिछली बार क्या मिल रहा था, माइनस माइनस एंड प्लस प्लस. तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ जा रहा था. यहाँ क्या मिल रहा है, माइनस प्लस एंड प्लस प्लस. तो प्लस प्लस तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया. माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट का साइन होता है, माइनस प्लस आपको याद होना चाहिए सेकेंड क्वाड्रेंट का साइन होता है. इट इज 0, इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3. सो अगेन 1 2 3, देन -1 -2 -3. नीचे मैंने बनाया ही नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है. आप देख रहे हैं कि या तो पॉइंट्स आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे, x नेगेटिव y पॉजिटिव माइनस प्लस, इसी क्वाड्रेंट का साइन होता है सेकेंड क्वाड्रेंट का, या फिर आपको प्लस प्लस साइन के पॉइंट्स मिलने वाले हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो
अगर हम इनको प्लॉट करें तो 0 पे 0 0 मिल गया, फिर 1 पे 1 1 मिला, 2 2 मिला, 3 3 मिला। यहाँ अगर हम -1 पे आए तो हमको पिछली बार जो -1 मिल रहा था नीचे, वो यहाँ ना मिलके ऊपर मिलेगा, तो -1 to 1। अगेन फॉर -2 we will get -2 2, right? Last time we were getting -2 -2. It was going in third quadrant, but now here it is modulus, so -2 will convert into +2. So -2 will also give the value +2, -3 will also give the value +3. So now you see that you will get a V-shaped graph passing through origin. What happened? What change happened? You can see. Earlier it was identity function में, it was fx is equal to x. So whatever negative values of x we were taking, we were getting the same negative values of y, and the graph was going straight away. प्लस के लिए प्लस एंड माइनस के लिए माइनस। मॉड्यूलस फंक्शन में क्या हुआ, इतना पोर्शन तो सेम है जो आइडेंटिटी फंक्शन में था, क्योंकि प्लस पॉजिटिव के ऊपर मॉड लगने से कोई असर नहीं होता, लेकिन जो पोर्शन नेगेटिव में आ रहा था वो मॉड की वजह से पॉजिटिव हो गया। मतलब यही ग्राफ जो स्ट्रेट जा रहा था वो यहाँ ना जाके इधर शिफ्ट हो गया। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ। ये सारे ग्राफ बिल्कुल याद रखना है आपको, क्योंकि 12th में जब आप लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी का चैप्टर पढ़ेंगे, सॉरी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये सारे ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। नाउ लेट अस सी अनदर इम्पॉर्टेंट ग्राफ। दो ऑल आर इम्पॉर्टेंट। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ। कांस्टेंट फंक्शन, दिस इज द थर्ड वन। f from r to r given as fx is equal to c for all x belonging to r. fx is equal to c is some constant. Now again this is a thing you are already familiar with. When I will tell you, you will recall. fx is equal to c is some constant. You can choose any constant by choice. Suppose I am taking c is equal to 3. So if we are taking this x dash, 5 y dash, this is 0 1 2 3 4 and so on, here -1 -2 -3 -4 and so on, and here there is some point c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इट इज अ कांस्टेंट, इट कैन बी 1, इट कैन बी 1.79, इट कैन बी 2.905, whatever it can be some real number. So here fx is equal to c. इससे क्या समझ में आ रहा है, x की वैल्यू हम कुछ भी लें, सपोज वी आर टेकिंग f of 1, तो जब हम 1 लेंगे तब भी हमको क्या मिलने वाला है, c ही मिलने वाला है। इफ वी आर टेकिंग f of 2 देन अगेन वी आर गेटिंग c, मतलब x की वैल्यू हम 1 लेंगे तो भी हमको y की वैल्यू c मिलेगी, 2 लेंगे तो भी c मिलेगी, 10 लेंगे तो भी c मिलेगी, 1 लाख लेंगे तो भी c मिलेगी। सो यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज वैल्यू ऑफ y और fx इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। x कुछ भी रखें, y की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ऑफ x है। पिछले एक्सप्रेशंस जो आपने देखे थे याद करने की कोशिश करिए, जैसे fx इज इक्वल टू x देखा था, तो जो x ले रहे थे वही वैल्यू मिल रही थी। fx वॉज डिपेंडिंग अपॉन x। जब हम fx इज इक्वल टू मॉड x ले रहे थे तो जो x ले रहे थे उसका मॉड्यूलस होके हमको मिल रहा था। अगेन दिस fx वॉज डिपेंडिंग ऑन x। अगर हम कोई और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे आपने देखा है छोटी क्लासेस में x² + 5 सपोज हमने लिया, तो जो भी वैल्यू हम x की रखेंगे उसके कैलकुलेशन के बेसिस पे ही fx की वैल्यू आएगी। ये सारी वैल्यूज डिपेंड कर रही थी x की वैल्यू पे, बट हेयर यू आर नॉट गेटिंग
any dependency, whatever value of you choose of x, it is irrelevant because the value has to become that fixed constant c ही आना है. In this case, what kind of graph you will get? Suppose you are taking x is equal to 1, you will get y is equal to c. You are getting x is equal to 2, again y is equal to c. X is equal to 3, again y is equal to c. If you take x is equal to 3.975, y is equal to c. 4, y is equal to c. तो जितने भी कोई भी रियल नंबर हम लोग x लेंगे उसके लिए सबके लिए वैल्यू क्या आएगी? c ही आएगी. इसी तरह नेगेटिव में भी अगर हम कोई भी x की वैल्यू लेंगे, सपोज वी आर टेकिंग x इज इक्वल टू -1, विल गेट y इज इक्वल टू c. x इज इक्वल टू -4, विल गेट y इज इक्वल टू c. x is equal to -2.9, y is equal to c. So if we join all these points, what we will get? We will get a straight line parallel to x-axis. This is what fx is equal to c. और याद कीजिए क्लास 9th में आपने ये पढ़ा था, a line parallel to x-axis. And a line parallel to x-axis was given as y is equal to, वहां पर आपने a पढ़ा था, a again was a constant. तो यही चीज है, y is equal to a कहिए या c कहिए, क्योंकि fx क्या होता है, वो y ही होता है. This is something you are already familiar with, only the name you didn't know. This is constant function. Constant function का ग्राफ parallel to x-axis, it is a straight line parallel to x-axis. Now let us see graph of polynomial function. Polynomial you have already studied in class 9th, and there are a variety of polynomials. So we will not see the all, we'll just see quadratic polynomial and cubic polynomial with simplest of its definition, that is fx is equal to x square, f from r to r. So given as fx is equal to x square for x belonging to r. ये पॉलिनोमियल फंक्शन हम ले रहे हैं, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. यहाँ अगेन देखिए क्या हो रहा है, fx किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे ही डिपेंड कर रहा है. वॉट एवर एक्स वी विल टेक, fx विल बी स्क्वायर ऑफ इट. तो यहाँ पर भी एक बात समझ में आ रही होगी आपको, जैसा मॉड्यूलस फंक्शन में हुआ था कि x अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलता ही है, लेकिन अगर हम x नेगेटिव लेंगे तो उसका भी स्क्वायर क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा. मतलब ग्राफ जब भी जाएगा वो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या? दिस. सो x डैश x, y y डैश 0. तो यहां से यहां तक y नेगेटिव होता है, इधर ग्राफ को नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर होके हर हाल में fx आपको पॉजिटिव मिलना है. मतलब इतनी बात क्लियर है इस डेफिनेशन से ही कि इसका जो ग्राफ मिलना चाहिए वो x एक्सिस के ऊपर ही ऊपर मिलना चाहिए, y की पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलना चाहिए. पॉइंट्स देखिए कैसे मिलने वाले हैं आपको. x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y क्या मिलेगा, या अगर हम नेगेटिव से ही स्टार्ट करते हैं, सपोज -3 लेते हैं तो y क्या मिलने वाला है? प्लस होके 9 मिलेगा. अगर हम x इज इक्वल टू -2 लेते हैं तो y क्या मिलेगा? 4 मिलेगा. x इज इक्वल टू -1, y विल बी 1. x इज इक्वल टू 0, y विल बी 0. x इज इक्वल टू 1, y विल बी 1. x इज इक्वल टू 2, y विल बी 4. x is equal to 3, y will be 9. Many of you might be thinking that why I am taking only integral values where we are saying it is from real numbers to real number. The integral values are taken just for convenience, क्योंकि हमको इंटीग्रल वैल्यूज का स्क्वायर करना आसान है, फटाफट हो जाएगा. तो इंटीजर्स भी रियल ही होते हैं. हम इन पॉइंट्स को ले रहे हैं, इनके बीच के सारे पॉइंट भी इसी में कवर हो जाएंगे. आप चाहें तो डेसिमल वैल्यूज़ को भी लेकर चेक कर सकते हैं.
ग्राफ बिल्कुल आपको सेम ही मिलना है। तो व्हाट पॉइंट्स वी आर गेटिंग, -3 9, -2 4, then -1 1, 0 0, 1 1, 2 4 and 3 9. 1 2 3 here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Let us take it even higher. Now see, we have taken these points. Let us plot these points. So first I am plotting 0 0, then 1 1, then 2 4. स्क्वायर हो रहा है तो 2 पे कहाँ मिल गया 4, 3 9 because square of 3 is 9. Then you are getting -1 1. -1 पे भी कहाँ मिलेगा 1, पहले ही बताया स्क्वायर होके ये पॉजिटिव ही हो जाएगा तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मिलना है. इट विल नेवर गो इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y. Then -2 4 again, then -3 9. If you join these points, you will join it with free hand and आप बीच के भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं. तो ये आपको एक U शेप का ग्राफ मिलता है. This is a U-shaped graph of fx is equal to x square. अब अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें, if we talk about fx is equal to x cube, then see what difference you get. इसी ग्राफ में हम चेंज करके देखेंगे. हमने यहाँ पे अपनी डेफिनेशन को fx is equal to x cube कर दिया. And now see what changes we are getting here. If we are taking x is equal to -3, cube of -3 will be what? -27. तो ये हमारा पॉइंट हो गया -27. If we take cube of -2, it will be what? -8. So this point is -2 -8. If we take cube of -1, it will be not +1, it will be -1. So we got point -1 -1. 0 का 0 ही रहना है, 1 का 1 ही रहना है, 2 का अगेन +8 होगा, +3 का +27. So these are the changes we are getting in these points. You will make in your copy separately the points and the graph. I am just changing here to show you the difference. अब points तो definitely बदल जाएंगे. ग्राफ का शेप याद रखिएगा, ये यू शेप ग्राफ आया था. यहाँ पर देखिए क्या मिलने वाला है. 0 पे 0 मिल रहा है, 1 पे 1, 2 पे क्यूब हो गया, कहाँ गया 8, काफ़ी ऊपर. 3 का हम नहीं शो कर पाएंगे, हमारी रेंज में नहीं जा रहा है. 3 का अगर आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, यू कैन इजीली प्लॉट 27, समवेयर इट विल बी हियर. आफ्टर दैट -1 -1. So now we will get in the third quadrant. Can you see this? ये पॉइंट्स पहले कहाँ मिल रहे थे? फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा y की पॉजिटिव डायरेक्शन है. बिकॉज ऑफ दैट स्क्वायर दिस fx was always positive, but this time it is x cube. So cube of a negative number gives you a negative number. That means whenever we'll take negative numbers, negative real numbers at place of x, then fx will also be negative. तो आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो या तो माइनस माइनस साइन के मिल रहे हैं या प्लस प्लस साइन के मिलेंगे. पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा. तो अगेन यहाँ क्या डिफरेंस आया कि ग्राफ या तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा प्लस प्लस साइन के साथ, आइदर इट विल कम इन थर्ड क्वाड्रेंट विथ माइनस माइनस साइन. It will not touch the second quadrant and the fourth quadrant, first quadrant and third quadrant. देखिए
तो -1 देन -2 -8, -2 पे -8, फिर -3 पे -27 और नीचे चला जाएगा ग्राफ कहीं। तो ये ग्राफ आपको ऐसे मिलता है। And it goes downward. Make it with a smooth hand. It is like this. If you draw on the graph paper, you will get a good graph. इस शेप का ग्राफ आपको मिलता है fx is equal to x cube का ग्राफ। दोनों ही किसके एग्जाम्पल थे? Both were examples of polynomial functions. First was of a quadratic polynomial, this is of cubic polynomial. Now we'll come to the next graph. There are two more important graphs, and then there is a rational function graph. You can do it by yourself. Fx is equal to 1 upon x. Something you can try by yourself. तो try करेंगे आप. After that, modulus function we have already seen. We will see now signum function and greatest integer function. Signum function is an interesting function. Greatest integer function, ये दोनों ही याद रखिएगा। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं डिसकॉन्टिन्यूटी के जो आप क्लास 12th में आपके काम आने वाले हैं। Signum function. What is the definition of signum function? Signum function is given as, ये भी रियल फंक्शन है, f from r to r, ठीक है, और it is given as fx is equal to -1 for x is negative, 0 for x is equal to 0, and 1 for x is greater than 0. This is the definition of सिग्नम फंक्शन। इसी को दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है fx is equal to mod of x upon x for x not equal to 0 and 0 for x is equal to 0। यही डेफिनेशन इस तरह से भी लिखी जाती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। Mod of x upon x for x is not equal to 0. How? fx is equal to mod of x upon x, ये लिया। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, यानी ये जो दोनों डेफिनेशन के पार्ट हैं वो इस अकेले में इंक्लूडेड है, और 0 के लिए 0 है ही। कैसे? लेट x इज इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर, कुछ भी ले लें। मान लो हमने लिया -3.75, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर हमने ले लिया। अब मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ -3.75 दैट विल बी इक्वल टू 3.75। देन इफ वी विल डू fx दैट इज मॉड ऑफ x अपॉन x, क्या मिलेगा हमको? इसका मॉड क्या मिला? पॉजिटिव नंबर मिला, एंड ये जो नंबर था वो नेगेटिव था। सेम नंबर पॉजिटिव को जब हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे व्हाट वी विल गेट? -1, बिकॉज इट विल कैंसिल आउट, यू विल गेट ओनली -1। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे हम कोई भी चेंज कर सकते हैं। सपोज हमने -3.75 की जगह हमने -5 ले लिया, तो मॉड ऑफ -5 क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। अगेन हमको क्या मिलेगा? +5 अपॉन -5 विल गिव यू -1। यानी हम कोई भी नेगेटिव नंबर लेंगे हमको हर हाल में ये -1 ही मिलने वाला है। सिमिलरली इफ वी टेक एनी पॉजिटिव नंबर, सपोज आई एम टेकिंग +5, तो +5 का मॉड क्या होगा? 5 ही रह जाएगा। पॉजिटिव में मॉड का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर 5 अपॉन 5 दैट विल गिव यू 1।
अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो सेम नंबर से डिवाइड होकर 1 मिलता है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं तो मॉड्यूलस से ऊपर वाला पोर्शन तो पॉजिटिव हो जाता है लेकिन नीचे वाला नेगेटिव ही रह जाता है, इसलिए -1 मिलता है। तो ले लेके हमको दो ही वैल्यूज मिलने वाली हैं, -1 और +1। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ signum function. Let us see how its graph comes. Very important graph, very important function, very good example of discontinuity. Discontinuity I'm not going to deal in this video because it will take much of the time. Though it is dealt a little bit in class, it is syllabus of class 12th, but in classroom teaching I have online teaching I have dealt about discontinuity little bit, but here I am not going to touch it. So it is 1, 2, 3, 4 and so on, whatever you take. This is 0, then -1, -2, -3, here 1, 2, 3 and so on, here -1, -2, -3 and so on. Now you see whatever positive number you take for x, x की वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव लेंगे, तो पॉजिटिव लेंगे तो कहाँ जाएगी x की वैल्यू? इधर राइट साइड में, y एक्सिस के राइट साइड में। तो सपोज हमने x की वैल्यू कुछ भी ली पॉजिटिव, सपोज हमने 0.5 ली, तो 0.5 लेंगे तब भी हमको क्या मिलने वाला है? 0.5 अपॉन 0.5 दैट इज 1। कुछ भी लेंगे मिलना 1 ही है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन में मिला था, याद करिए c ही मिला था, कुछ भी लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, हम कुछ भी वैल्यू लेंगे हमको मिलेगा 1। थोड़ा हम बल्कि इसको थोड़ा और दूर बना देते हैं, आपको क्लियर दिखेगा ये ग्राफ। हम इसको यहाँ पे बना रहे हैं, तो हमको कुछ भी हम लेंगे तो हमको मिलेगा 1। मतलब 1 लिए तो भी 1, 2 लिए तो भी 1, 3 लिए तो भी 1, 4.75, 9 लिए तो भी 1, मतलब whatever value of x will take will get y is equal to 1. Similarly, whatever value of x negative we will take, we will get y is equal to -1. But what about when this value touches y axis? y axis को टच करने का मतलब क्या हुआ? x is equal to 0. जैसे ही x is equal to 0 होगा, ये वैल्यू यहाँ ना मिलके कहाँ मिलेगी? 0 पे मिलेगी। इसी तरह नेगेटिव साइड से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं 0 की तरफ, तो हर एक वैल्यू के लिए तो आपको -1 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही ये x 0 पे पहुंचेगा तो ये वैल्यू -1 ना मिलके आपको 0 मिलेगी। तो यहाँ पे एक होल बनाते हैं जस्ट ये शो करने के लिए कि y एक्सिस पे ये वैल्यू 1 या -1 नहीं है। y एक्सिस के राइट साइड में ये वैल्यू 1 है, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में ये वैल्यू -1 है, और y एक्सिस पे, y एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या है? 0 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दिस ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। देखिए यहाँ से ग्राफ आ रहा है, फिर यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। डिसकंटिन्यूटी एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर किसी भी ग्राफ को हमें ड्रॉ करना है तो अगर हम उसे टिप ऑफ पेन प्लेन ऑफ पेपर से उठाए बिना ड्रॉ कर सकते हैं, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस। लेकिन इस ग्राफ को क्या कोई भी इंसान बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकता है? यहाँ आए, फिर ये पॉइंट मिला, फिर ऐसे आए, देख रहे हैं ना, पेन उठानी पड़ी। बिना पेन उठाए आप इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो एक लेमैन्स लैंग्वेज में इसको समझ सकते हैं आप कि डिसकंटिन्यूटी क्या है? ऐसा फंक्शन जिसके ग्राफ को आप बिना पेन उठाए ड्रॉ ना कर सकें। और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या है? देखिए आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, चाहे क्वाड्रेटिक था या क्यूबिक था, ठीक है। लेकिन ये ग्राफ आप बिना पेन उठाए ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो दिस इज a very good example of discontinuity. This is the graph of signum function -1, 0, 1. यहीं पे अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो रेंज क्या होती है? fx की वैल्यूज जो मिलती हैं, fx की कितनी वैल्यूज मिल रही हैं? ओनली 3, -1, 0 एंड +1।
So what would be range of signum function? Its range would be -1, 0 and +1. These 3 points will form its range. Very popular function, very important function, and its graph. ठीक है. Now let us see one more important graph, that is greatest integer function. इसको थोड़ा सा समझने में आपको टाइम लगेगा. Greatest integer function. देखिए, what is greatest integer function? It is also a real function f from R to R, given as fx is equal to greatest integer x for x belonging to R. इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये सिंबल होता है. इसका मतलब होता है कि यहाँ जो भी वैल्यू होगी, जो भी रियल वैल्यू होगी, उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर जो है वो इसकी वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे -3.5 लें, पहले माइनस नहीं, पहले प्लस ही ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी. पहले हम इसको +3.5 ले रहे हैं. तो अगर हम यहाँ पे 3.5 ले रहे हैं, तो 3 पॉइंट नंबर लाइन पे अगर आप देखिए, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे है. इधर -1 है, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. तो 3.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा कहीं. अब 3.5 इज नॉट एन इंटीजर. इट इज अ रियल नंबर, इट इज अ डेसिमल नंबर, इट इज नॉट एन इंटीजर. तो अब जब ये इस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.5 बोलेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा? इससे छोटा, इसके एडजेसेंट जो भी इंटीजर हो, इसके एडजेसेंट और इससे छोटा. एडजेसेंट तो दोनों है, 3.5 के एडजेसेंट 3 भी है और 4 भी है, लेकिन 4 इससे बड़ा है. व्हाट वी नीड? द स्मॉलर इंटीजर एडजेसेंट टू इट. दैट मीन 3. 3.5 से जस्ट छोटा क्या मिलेगा आपको? 3. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3. उसी तरह अगर हम एक नेगेटिव नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम पहले पॉजिटिव में ही लें, अगर हम एक इंटीजर ही ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2 लिया, तो अब ये खुद में इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू यही रहेगी 2. अगर हमने एक नेगेटिव नंबर लिया, सपोज हमने लिया -3.5 ले लिया, तो अब देखिए -3.5 कहाँ आएगा? यहाँ आएगा, है ना. अब इससे एडजेसेंट, इससे छोटा कौन सा इंटीजर मिलेगा? -4. उसी तरह हमने अगर -2 लिया, तो क्या मिलेगा? -2 ही मिलेगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक इंटीजर है. तो ये होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन. अब रियल नंबर इनफाइनाइट, -∞ टू +∞ है, इनफाइनाइट नंबर्स हैं उसमें, उसको हम कैसे कवर अप करें कि हमें सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाए और हमारी डेफिनेशन भी बन जाए. देखिए कैसे करते हैं. ये है नंबर लाइन, सॉरी, इन्फिनिटी टू -∞, यहाँ पे 0. अब अगर हम 1, 2, 3 एंड सो ऑन ऐसे ले रहे हैं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन ले रहे हैं. अब देखिए हम करेंगे क्या? इस पूरी नंबर लाइन को कवर करना है, तो इस नंबर लाइन को ऐसे ये इंक्लूड करते हुए सेमी क्लोज इंटरवल में हम लोग डिवाइड करते हैं, और इसकी डेफिनेशन बनाते चले जाते हैं. ठीक है, ये पॉइंट्स अगले वाले इंटरवल में आ रही है, ध्यान दीजिए. ये 0 नेक्स्ट इंटरवल में आ रहा है, क्योंकि यहाँ क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन इंटरवल है, तो ये इधर ना काउंट होके इधर काउंट हो रहा है, फिर ये इधर ना काउंट होके 1 इधर काउंट हो रहा है. तो ऐसे करके आपको सेमी क्लोज इंटरवल में हम पॉइंट्स लेते चले जाते हैं. तो इससे क्या हो रहा है? पूरी नंबर लाइन कवर हो जा रही है. जैसे -3 इंक्लूड करते हुए -2 तक,
जिसमें -2 इज एक्सक्लूडेड। फिर -2 छूट गया था, वो अगले इंटरवल में आ गया, -2 इसमें इंक्लूड हो गया, -1 तक के सारे नंबर -1 को छोड़ते हुए। -1 कहाँ जा रहा है, वो अगले सेमी क्लोज इंटरवल में इंक्लूड हो रहा है, -1 से 0 तक, -1 से 0 तक के सारे नंबर एक्सक्लूडिंग 0, देन 0 to 1 ऑल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 बट एक्सक्लूडिंग 1। तो इस तरह से कवर करते चले जाएंगे तो पूरी नंबर लाइन कवर हो जाएगी। अब ऐसे ही जब हम यहाँ पे इंटरवल बनाते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। How does it take the value? I'm taking it here inside because I need some space to. f(x) is equal to greatest integer x given as if we take 0 is less than x is less than 1। सेमी क्लोज इंटरवल मैंने आपको दिखाया था ना, अगले वाले इंटरवल में इंक्लूडेड था, तो 0 इज लेस देन x इज इक्वल टू लेस देन 1। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ जितने भी नंबर मिलेंगे, अगेन एक बार देख लीजिए जो मैंने बनाया था, 0 1 2 -1 -2 ऐसे करके, तो इंटरवल ऐसे लिया गया था, फिर ये 1 इधर आया था, इसमें छूटा था, तो यहाँ से यहाँ के बीच के सारे नंबर क्या होंगे, वो डेसिमल नंबर ही होंगे। इस सेमी क्लोज इंटरवल में एक ही इंटीजर है, वो है 0, बाकी सब के सब डेसिमल नंबर है। इसी तरह इस सेमी क्लोज इंटरवल में एक ही इंटीजर है 1, बाकी सब के सब डेसिमल नंबर है। सिमिलरली इस वाले इंटीजर में एक ही इंटीजर है -1, ऑल आर डेसिमल नंबर्स, क्योंकि 0 अगला इंटीजर अगले इंटरवल में है। तो इस पूरे इंटरवल में एक ही इंटीजर है 0, बाकी सब डेसिमल नंबर है। जितने भी नंबर इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, एवरी नंबर विल टेक अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हाट वैल्यू, इट विल टेक 0, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर आएगा सब से एडजेसेंट, सभी के एडजेसेंट और छोटा इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा। उसी तरह 1, पहले इंटरवल ही लिख देते हैं, -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -1, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन -2। तो अब देखिए इस इंटरवल की बात करें तो 1 से 2 के बीच में सारे के सारे डेसिमल नंबर हैं, सिर्फ एक ही इंटीजर है 1, तो जो भी नंबर यहाँ लेंगे उस सब की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में, एडजेसेंट स्मॉलर इंटीजर विच इज 1। इसी तरह यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ कोई भी नंबर लेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2। यहाँ कोई भी नंबर लेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। यहाँ कोई भी नंबर लेंगे वैल्यू क्या आएगी, -2। ठीक है, उसी तरह -3 से -2 वाले में क्या आएगी, -3। ये होती है इसकी डेफिनेशन। आई होप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसका ग्राफ देख लीजिए। इसी के बाद इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे बिकॉज इट इज बिकमिंग टू लॉन्ग। देखिए 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। Now see -3 to 2 -2 यानी x जब -3 से -2 के बीच में ट्रैवल करेगा तो -3 से -2 के बीच में x का कुछ भी हम लेंगे हमको y क्या मिलने वाला है, -3। यानी -3 पे भी से पहले हमको -3 के जस्ट बड़े पॉइंट पे, क्योंकि -3 से लेके -2 तक हमको ये, तो -3 पे हमको -3 मिला और जैसे ही हम -2 तक ट्रेवल कर रहे हैं तो हमको ये वैल्यू इन सब पॉइंट्स के लिए क्या मिल रही है, -3 ही मिल रही है।
लेकिन जैसे ही x -2 पे पहुंचेगा यहाँ वैल्यू नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि -2 पर पहुंचते ही इक्वालिटी यहाँ है, एज x रीचेस टू -2 इट टेक्स वैल्यू -2। तो -2 पे पहुंचते ही x की वैल्यू यहाँ से जंप कर जाएगी यहाँ पे -2 पे, और फिर -2 से -1 तक ट्रेवल करेगा x, तो हमको वैल्यूज कहाँ मिलती जाएंगी? -2 तक। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू -1 पे पहुंचेगी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगी। -2 से -1 तक तो -2 मिला, लेकिन जैसे ही x -1 के इक्वल हुआ इट टेक्स द वैल्यू -1। तो अगेन द वैल्यू डजंट गेट हियर, वी गेट द वैल्यू -1 पे -1 मिल जाती है। यहाँ पे एक हॉलो सर्किल हम बनाते हैं ये दिखाने के लिए कि ये पॉइंट हमारी वैल्यू में इंक्लूड नहीं हो रहा है। I hope you can see the graph clearly. Then -1 to 0 we will get -1, but जैसे ही x 0 पे पहुंचेगा, 0 मतलब y एक्सिस को टच करेगा, तो वैल्यू यहाँ ना मिलके 0 पे मिल जाएगी। फिर 0 से 1 x ट्रेवल करेगा तो वैल्यू 0 ही मिलनी है, यानी y की वैल्यू 0 मतलब x एक्सिस पे ही ग्राफ रहेगा। जैसे ही x -1 को टच करेगा वैल्यू यहाँ ना मिलके -1 पे मिलेगी। जैसे ही x 1 को टच करेगा तो 0 से 1 तक तो 0 मिल रही है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू 1 हुई वैसे ही ग्राफ 1 पे पहुंच गया। फिर 1 से 2x की वैल्यू के लिए वैल्यू 1 ही रहेगी। एज x रीचेस 2 इट विल नॉट गिव वैल्यू 1, इट विल गिव वैल्यू 2। अगेन एज x 2 to 3 वैल्यू विल बी 2, 2 to 3 वैल्यू 2 होगी, लेकिन जैसे ही ये 3 पे पहुंचेगा वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 पे पहुंच जाएगी, मीन्स ये वैल्यू यहाँ ना मिलके आपको यहाँ मिलेगी, एंड सो ऑन। तो ऐसे ही ये ग्राफ मिलता चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? इट इज लाइक अ स्टेयरकेस, यू कैन क्लाइंब अपॉन इट। सी, इट इज लाइक अ स्टेयरकेस, यू कैन क्लाइंब अपॉन इट। तो याद रखिएगा, सीढ़ी जैसा ग्राफ आता है, स्टेयरकेस जैसा, यू कैन क्लाइंब अपॉन इट। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉइंट मिल रहा है, इधर सर्कल है। जब ये ग्राफ अगर बनाने को आया तो बच्चे अक्सर उल्टा कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, सेमी क्लोज इंटरवल में लोअर लिमिट पे इक्वालिटी है, अपर लिमिट पे सिर्फ इनइक्वालिटी है। सो दिस इज अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज अगेन अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ कोई भी बिना पेन उठाए बना ही नहीं सकता है। ग्राफ इज ब्रेकिंग इटसेल्फ एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। अब अगर हम इसके रेंज की बात कर लें तो इसका रेंज क्या होगा? ऑल इंटीजर्स ना, जो वैल्यूज मिल रही है वो कैसी मिल रही हैं? x तो हम रियल नंबर ले रहे हैं, डोमेन रियल है, लेकिन रेंज क्या मिल रहा है? इंटीग्रल वैल्यूज ही मिल रही है, मतलब इसका रेंज क्या आएगा? ऑल इंटीजर्स। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? z। क्लियर? सो इट्स अ लॉन्ग वीडियो, अराउंड ऑफ 1 आवर, बट इसको आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ये काफ़ी यूजफुल है आपके लिए ग्राफ, आपके कंपटीशन में, और आपकी 12th क्लास की कैलकुलस, जो कि आपको पता है कि 12th की पूरी मैथ्स ही एक तरह से कैलकुलस है। 44% वेटेज होता है एग्ज़ाम में, तो पूरी कैलकुलस, स्पेशली डिफरेंशियल कैलकुलस, इस पर आपकी पूरी बेस करेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई होप यू एंजॉयड, यू अंडरस्टूड। एक ग्राफ मैंने बस छोड़ा था रेशनल फंक्शन का, वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे, इट्स वेरी इजी, क्योंकि पॉलिनोमियल बता चुके हैं तो रेशनल आप इजीली कर ले जाएंगे, बिकॉज दिस वीडियो इज़ बिकमिंग टू लॉन्ग। सो आई होप यू ऑल एंजॉयड। सो ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।